Namaste and welcome to Simple Learning. In this video, we are going to learn the meaning of curriculum framework, syllabus, textbook. So इन सभी के साथ हम और क्या देखेंगे? We will see the relationship between curriculum framework, syllabus and textbook. तो इस वीडियो में we are going to learn about the relationship between all these three things. So let us start. So, very first we will see the meaning of curriculum framework. Curriculum framework क्या है? A comprehensive structure that provides common base to the nation's education system. Curriculum framework जो है एक डिटेल ब्रॉड सारी चीजें उसमें हैं with respect to education जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाता है कि पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा. Let us see the details of curriculum framework. Very first point is an organized plan that gives clear standards of education, aims of education and stage-specific teaching objectives. So curriculum framework जैसे NCF 2005 है, ये completely detailed, very systematically organized plan है जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरह के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स कैसे टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम मेंटेन रखेंगे, ऑल्सो एम्स या गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या है और हर एक स्टेज पे लर्निंग लेवल पे दैट इज एजुकेशनल लेवल पे कौन सी स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, वो सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें स्पेसिफाई किए हैं. सो दिस इज व्हाट इज करिकुलम फ्रेमवर्क. लेट अस कंटिन्यू. Informs about the kinds of learning experiences to be provided. तो curriculum framework ये बताता है कि किस तरह के learning experiences, teaching learning experiences teacher को देने चाहिए ताकि वो learners को अच्छे से content भी समझ में आए, साथ ही साथ उनका behavior change भी हो in a correct direction. Next point. Guides planners and teachers choice of content, teaching learning material and evaluation. तो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है कि ऑर्गेनाइज प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इंफॉर्मेशन है विच गाइड्स द टीचर्स एज वेल एज द सिलेबस प्लानर्स, सभी को गाइड करते हैं कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए. Also, evaluation techniques should cater to the diversity of learners. ये सारी चीज़ों के बारे में curriculum framework गाइड करता है. The next point helps the state and school to make informed decisions regarding curriculum. तो यहाँ पे जो नेशन वाइड करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता है करिकुलम फ्रेमवर्क, तो हर एक स्टेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक गाइड है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन देता है कि ओके विच टाइप ऑफ डिसीजंस विल बी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन. So this is what is, it helps the state and school to make correct and right decisions with respect to education. Second last point, determinants philosophy, psychology, sociology, etc. So ये curriculum जो बन रहा है, curriculum framework जो बन रहा है, ये सारे determinants के basis पे बन रहा है. So philosophical foundation है, psychological, sociological, political, ऑल्सो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है. एंड द लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट मेंशन एक्चुअल कंटेंट. करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, प्लान है, डिटेल्स है अबाउट हाउ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी देयर इन एवरी लेवल एट एवरी स्टेज. किस तरह के एक्सपीरियंसेस देने हैं, लर्निंग मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, लर्नर्स को क्या क्या डेवलप होना चाहिए किन किन एरियाज में, बट एक्चुअल कंटेंट क्या पढ़ाना है वो करिकुलम फ्रेमवर्क में नहीं होता है, वो किसी और चीज में होता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. So this is all about curriculum framework. It is a comprehensive structure
that provides common base to the nation's education system. Let us move to the next slide, which is going to talk about syllabus. So let us see the meaning of syllabus. Syllabus refers to what is to be taught to the learners. तो syllabus बताता है कि learners को actual में educational institution में क्या पढ़ाना है. Syllabus is concerned with school subjects. तो syllabus जो है स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है. नेक्स्ट वन, स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स एक्चुअल कंटेंट टू बी टॉट. तो क्योंकि हमने देख लिया है कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस में एक्चुअल में कौन सा कंटेंट पढ़ाना है वो बताया जाता है. तो कंटेंट जो है कितने तक सीमित रखना है, कंटेंट का स्कोप क्या है, वो भी सिलेबस बताता है. मेजरली केटर्स टू कॉग्निटिव डोमेन. तो सिलेबस जो है मेजरली रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ऑल्सो टू क्रिएट, ये सारे कॉग्निटिव डोमेन को केटर करता है. अदर डोमेन्स को भी केटर करता है, बट मेजरली कॉग्निटिव डोमेन को केटर करता है because it is content specific. And the last one, provides base for formal evaluation. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किस चीज का evaluation करेंगे, जो भी कंटेंट पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया, उसको by using various methods of evaluation, various techniques of evaluation evaluate किया जाता है. तो syllabus जो है base provide करता है for formal evaluation. So this is all about syllabus. Let us see what exactly is textbook in the coming slide. So after understanding curriculum framework, syllabus, let us understand what is textbook. A standardized manual of instructions. So textbook जो है एक written document है जो एक standardized है. हर एक बोर्ड की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टेक्स्ट होती है. टेक्स्ट a book used in the study of a subject. So टेक्स्ट बुक क्या है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टेक्स्ट बुक होती है जिसको यूज किया जाता है टू स्टडी दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसोर्स इन द क्लासरूम. सो टेक्स्ट बुक जो है एक बहुत ही बेसिक और कॉमन रिसोर्स है जो टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स डेली वो जो सब्जेक्ट समझ रहे हैं, वो सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तब वो यूज करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज इन द क्लासरूम. सो टीचर जब कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो टीचर रेफर करते हैं टेक्स्ट बुक को, इवन स्टूडेंट्स रीड करते हैं टेक्स्ट बुक को. सो दिस इज व्हाट इज टेक्स्ट बुक. हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड डाइवर्जेंटली. तो टेक्स्ट बुक जो है वो हेल्प करती है, मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को टू थिंक इन अ वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स, टू अप्रिशिएट also it develops various skills in the learner. And the last one, textbooks are available in the printed and electronic form. So nowadays apart from only print form, hard copy के अलावा soft copy भी freely available है. There are various boards जिनकी सारी टेक्स्ट बुक्स, हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक फ्रीली अवेलेबल है. ऑल्सो NCERT की टेक्स्ट बुक्स फ्रीली अवेलेबल है इन दी सॉफ्ट कॉपी. सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक. इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस. So after understanding all three of these, let us now understand, is there a relationship between curriculum framework, syllabus and textbook? क्या सही में ये तीनों के बीच में कोई रिलेशन है? Let us understand in this coming slide. So let us see the relationship between curriculum framework, syllabus and textbook. Curriculum framework have provisions for diversity. So curriculum framework ये ध्यान में रखता है कि diversity of learners, जो भी learners की diversity है with respect to learning abilities, with respect to evaluation techniques, ये सारा ध्यान में रखता है. It provides guidelines to identify objectives of teaching. तो curriculum
फ्रेमवर्क ये भी बताता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्टेज स्पेसिफिक क्या क्या होने चाहिए, द कंटेंट मैटर एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड। करिकुलम फ्रेमवर्क ये बताता है कि किस तरह के कंटेंट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस टीचर प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, which is all considered in the syllabus and test book. So जो भी guidelines curriculum framework देता है with respect to provisions for diversity, with respect to objectives of teaching, content matter, learning experiences, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के syllabus and test book बनाई जाती है. Curriculum framework guides the syllabus framers about the various evaluation process to be used for the learners. तो करिकुलम फ्रेमवर्क ये भी गाइड करता है सिलेबस फ्रेमर्स को कि किस प्रकार के अलग अलग तरह के इवैल्यूएशन टेक्निक्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, साथ ही साथ अलग अलग वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स, वो करिकुलम फ्रेमवर्क बताता है टू केटर टू द डाइवर्सिटी ऑफ द लर्नर्स. सो ये सारी चीज़ें सिलेबस फॉलो करता है. So this is what is the relationship between curriculum framework, syllabus and test book. Let us continue. A clear vision to design syllabus is provided by the curriculum framework. तो curriculum framework एक clear picture दे देता है कि syllabus किस प्रकार से बनना चाहिए. Syllabus provides the scope of the content which has to be present in the test book. तो सिलेबस बाद में बताता है टेक्स्ट बुक को कि कितना कंटेंट होना चाहिए. ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ टेस्ट curriculum framework and syllabus is to develop various life skills in the learners, which is taken care by the experts while preparing the test book. तो करिकुलम फ्रेमवर्क और सिलेबस जब बनाया जाता है तो वो बताते हैं, गाइड करते हैं कि ओके, लर्नर्स के अंदर वेरियस अपार्ट फ्रॉम कंटेंट लर्निंग, उनके अंदर वेरियस लाइफ स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए. सो लाइफ स्किल्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, ये सारी लाइफ स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए लर्नर में, जो कि टेक्स्ट बुक्स फ्रेमर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ध्यान में रखते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे प्रिपेयर द टेक्स्ट बुक्स. So this is what is the relationship between curriculum framework, syllabus or test book. And the last one, test books support the objectives mentioned in the curriculum framework and syllabus. So right from the beginning, curriculum framework ने जो भी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, सिलेबस ने जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, वो सभी को ध्यान में रख के टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती है. Test book is prepared according to the guidelines of curriculum framework and syllabus. So test book ये guidelines जो दिया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने, syllabus ने, उस हिसाब से बनाई जाती है. Also, test book provides various learning opportunities as mentioned in the curriculum framework. तो various learning experiences टीचर क्या क्या दे सकते हैं वो भी टेक्स्ट बुक अपने अंदर दिखाता है. Also different ways of learning through diagrams, through pictures, through content, through they also mention what students can do with respect to skill building, with respect to affective domain. तो ये सारी चीज़ें according to the guidelines of curriculum framework टेक्स्ट बुक ध्यान में रख के टेक्स्ट बुक्स के जो experts हैं वो बनाते हैं. So this is where it shows कि yes, करिकुलम फ्रेमवर्क, सिलेबस और टेक्स्ट बुक के बीच में बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि करिकुलम फ्रेमवर्क एक बार बन गया दैट डजंट मीन कि करिकुलम फ्रेमवर्क बस बुक्स में ही रह गया. इट इज़ एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड इन द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, एंड विद दीज थिंग्स द टीचर टेक्स हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अहेड, और वो अलग अलग प्रकार के टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं. तो ये सारी तीनों चीज़ें एक साथ चलती है. दे हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. सो फाइनली, thus curriculum framework is designed at the national level, and considering the curriculum framework, the syllabus and test books are prepared at state level. So curriculum framework तो national level पे बन गया, साथ ही साथ उसको ध्यान में रख के सिलेबस बनाया जाता है, टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती है ऑफ वेरियस बोर्ड्स,
at state level. So there exists a relationship between all these three, that is curriculum framework, syllabus and टेक्स्ट बुक. आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो. नमस्कार. थैंक यू.